Hello students, welcome to Sairam English classes. If you like our videos then please like and subscribe the channel for new updates. If you have already subscribed then please hit the bell button on the screen. Today we will read chapter 4 of class 12th, Vista's book The Enemy, written by Pearl S. Buck. This story is quite simple and easy. But before we start the story, I will tell you about the writer of this chapter and please watch the video till end. P.S. Buck, whose full name was Pearl Stryker Buck. She was born in 1892 and died in 1973. She was an American writer and novelist. She had a Chinese name, Sai Zhanzhou, as she spent her childhood in China, being the daughter of missionaries. She was awarded the Pulitzer Prize in 1932 and the Nobel Prize in Literature in the year 1938. Now we will proceed to the chapter. Before starting the story, I will tell you about the introduction. What happens in the story? Actually, this story is the time of World War II and America and Japan is at war. They are fighting with each other. An American prisoner of war gets washed away to the doorstep of a Japanese doctor, Seda. The choice is very hard for Dr. Sadao and his wife. Should they hand him over to the police or save him from dying? Being a doctor, Sadao gives top priority to save the life of a dying man. Not only does he save him, but also helps him in escaping to freedom. And this story highlights how this Japanese doctor saves the life of an American prisoner of war and rises above narrow national prejudice. He risks his honor, career, position, and life by sheltering a war prisoner of the enemy camp and saves his life. This story highlights कि कैसे जो एक जापानीज डॉक्टर हैं वो एक अमेरिकन जो प्रिजनर ऑफ वॉर है उसकी लाइफ को बचाते हैं और कैसे वो एक जो हमारी मानसिकता है जो एक नेशनल प्रेजुडिस है उससे कैसे वो ऊपर उठते हैं और इस चीज़ के लिए उनको अपना ऑनर, अपना करियर, उनकी जो पोजीशन थी और इसके साथ साथ उन्हें अपनी लाइफ को भी स्टेक पे लगाना पड़ता है, दांव पे लगाना पड़ता है. और author has beautifully portrayed the conflict in the doctor's mind and as a private individual and as a citizen with a sense of national loyalty. और जो ऑथर है उसने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है, बहुत अच्छे से दर्शाया है जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, जो एक संघर्ष चल रहा था, जो एक फाइट चल रही थी डॉक्टर के माइंड में कि एज अ डॉक्टर ही शुड सेव द लाइफ ऑफ द मैन एंड एज अ जापानीज सिटीजन he should hand over this person to the army or left over there. This story takes place on a coastal town of Japan in the year 1941 when Japan attacked Pearl Harbor. ये जो स्टोरी है एक समुद्री तट के किनारे पर बसते एक शहर की है जापान में और 1941 की ये बात है जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया था. अ वार गोइंग ऑन बिटवीन अमेरिका एंड जापान. और अमेरिका और जापान के बीच में एक वॉर चल रहा था. जापानीज वर हॉस्टिल टू द अमेरिकन्स एंड रेडी टू किल एनी अमेरिकन फाउंड इन देयर सॉइल. और जापानीज बहुत ज़्यादा डर गए थे अमेरिकन से और वो बिल्कुल उनका ये था कि अगर कोई भी अमेरिकन उनको अपनी मिट्टी के आसपास, अपने शहर में, अपने कहीं आसपास कहीं भी दिखता है तो उन्हें
तुरंत उसे मारना चाहते थे वो। Now we will discuss the characters of the story. First one, Sadao Hoki. He is a main character in the story. We can say a protagonist, a Japanese doctor trained by American. Although he is a Japanese, but he has got the training of doctor from America. Sadao's father, concerned about his son's education, and he was so much concerned about his son's education that he never played with his son. Somehow he wants that his son got the degree of a doctor in front of his eyes. A true patriot, and he was a true patriot of Japan. बहुत सच्चे देशभक्त थे अपने जापान के लिए. हना, वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ. ये वाइफ है डॉक्टर सदाओ की. शी इज ऑल्सो अ जापनीज गर्ल, एंड शी ऑल्सो मैट इन द ट्रेनिंग इन अमेरिका विद डॉक्टर सदाओ. टॉम, एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, सोल्जर ऑफ यूएस नेवी. और ये जो अमेरिकन टॉम है, ही इज़ एन अमेरिकन प्रिजनर, और ये अमेरिकन प्रिजनर है वॉर का, और एक सोल्जर है यूएस नेवी के. द ओल्ड जनरल, अ सिख जापनीज आर्मी जनरल. जो ओल्ड जनरल हैं ये बहुत बीमार हैं और जापनीज आर्मी के जनरल हैं. ही वॉज नीडेड इन ऑपरेशन. एट एनी टाइम ही वॉज इन नीड ऑफ ऑपरेशन. किसी भी टाइम इनका ऑपरेशन हो सकता है. एंड ही ट्रस्ट ओनली डॉक्टर सदाओ फॉर गेटिंग ऑपरेटेड. वो सिर्फ डॉक्टर सदाओ का ही ट्रस्ट करते हैं, उन्हीं पे विश्वास करते हैं, और सिर्फ उन्हीं से ऑपरेशन को कराना है. एन ऑफिसर, मैसेंजर ऑफ द जनरल. गार्डनर, एन ओल्ड गार्डनर इन द हाउस ऑफ डॉक्टर सदाओ. येमी, हनाज मेड सर्वेंट. कुक, an old cook in the house of Dr. Sadao. So these are the characters in the story. Now this story starts from here. Dr. Sadao Hoki was an eminent Japanese surgeon and scientist. He had spent 8 valuable years of his youth in America to learn all that he could learn of surgery and medicine there. He was trying to discover which would render wounds entirely clean. Dr. Sadao's house was built on rocks above narrow beach that was outlined with best pines. It was on a spot of Japanese coast. तो जो डॉक्टर सदाओ होकी हैं उनका घर जो है एक जापानी समुद्र के किनारे पर बना हुआ है. एंड एक ये बहुत ही एक एमिनेंट मतलब एक फेमस जापानीज सर्जन है और साइंटिस्ट हैं. और इन्होंने जो है अपने 8 वैल्यूबल ईयर्स जो है अपनी यूथ के अमेरिका में दी हैं. इन दोज ईयर ही हैड लर्न अ लॉट अबाउट सर्जरी एंड मेडिसिन. बहुत कुछ उन्होंने वहाँ से सीखा है. एंड नाउ ही वॉज ट्राइंग टू डिस्कवर विच मेडिसिन वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन. और अब वो ऐसी दवाई की खोज कर रहे हैं जो कि घाव को बहुत पूरी तरह से क्लीन कर सकती है और जल्दी से भर सकती है. डॉक्टर सदाओ का जो हाउस है ये रॉक के किनारे बना हुआ है, ये समुद्र तट के किनारे बना हुआ है. इट वॉज ऑन अ स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट. डॉक्टर सदाओ न्यू दैट they would be arrested if they sheltered a white man in their house. The wounded man was a prisoner of war who had escaped with a bullet on his back. Since Japan was at war with America, harboring an enemy meant being a traitor to Japan. Dr. Sadao could be arrested if anyone complained against him and accused him of harboring an enemy. डॉक्टर सदाओ न्यू, वो जानते थे कि दे वुड बी अरेस्टेड, उनको कोई भी अरेस्ट कर सकता है इफ़ दे शेल्टर्ड अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ यूएस आर्मी. कि अगर एक वो वाइट मैन को एक अगर वो ब्रिटिश व्यक्ति को अपने यहाँ पर एक वो शेल्टर देते हैं तो उन्हें सज़ा हो सकती थी, उन्हें अरेस्ट किया जा सकता था. और जो वुंडेड मैन था, जो घायल व्यक्ति था,
वो एक प्रिजनर था वॉर का, और जो कि गोली से जो कि गोली से, जिसको गोली लगी थी और गोली से जो बच गया था। सिंस जापान वॉज एट वॉर विद अमेरिका, क्योंकि जापान और अमेरिका के बीच में वार चल रही थी, तो एक एनिमी को अपने घर में रखना ऐसा था जैसे कि जापान को धोखा देना, अपने ही देश को धोखा देना। तो डॉक्टर सदाओ को अरेस्ट भी किया जा सकता था और कोई भी उनके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकता था, और कोई भी उनको एक एनिमी को रखने के जुर्म में सज़ा सुना सकता था। The gardener and the cook were frightened that their master was going to heal the wound of a white man, an enemy. और जब डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ हना जो थी, जब वो अमेरिकन सोल्जर को घर लेकर के आए, तो जो उनका गार्डनर था और जो उनकी कुक थी, दे वर सो फ्राइटेंड, और वो इतना डर गए, और दे वर थिंकिंग कि जो उनके मास्टर हैं, दे वर गोइंग टू हील द वुंड ऑफ अ वाइट मैन इन एनिमी, कि जिसको ट्रीट करने जा रहे हैं, जिसको ठीक करना चाहते हैं, जिसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, वो एक एनिमी है, एक वाइट मैन है। दे फेल्ट दैट आफ्टर बीइंग क्योर्ड द वाइट मैन विल टेक रिवेंज ऑन द जापनीज, और उन्हें कहीं ना कहीं ये भी डर था कि जब ये वाइट मैन ठीक हो जाएगा, आर्मी का ये व्यक्ति, तो ये जो जापानीज़ हैं, जापानीज़ लोगों से ये बदला लेगा। यूमी द मेड ऑल्सो वॉज फ्राइटेंड, और जो यूमी थी, जो मेड सर्वेंट थी, वो भी बहुत ज़्यादा डर गई। शी रिफ्यूज़ टू वॉश द वाइट मैन, और उसने जो है वाइट मैन के वुंड को वॉश करने से बिल्कुल मना कर दिया कि मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी। हना रिब्यूक द मेड हु हैड रिफ्यूज टू वॉश अ वुंडेड हेल्पलेस मैन, और हना ने उसको बहुत ज़्यादा सुनाया भी, बहुत ज़्यादा उसको बोला कि कैसे वो एक हेल्पलेस व्यक्ति की मदद के लिए मना कर सकती है। दैन शी डिप्ड अ स्मॉल डीन टॉवल इनटू द स्ट्रीमिंग हॉट वाटर एंड वॉश द वाइट मैन्स फेस, और तब हिना ने खुद ही एक छोटा सा टॉवल लेकर के गर्म पानी से उसके वुंड को क्लीन किया और उसके फेस को साफ किया। शी कैप्ट ऑन वॉशिंग हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, और तब तक उसने साफ किया हना ने, जब तक कि जो उसकी ऊपर वाली बॉडी थी पूरी क्लीन नहीं हो गई, जो वुंड था बिल्कुल साफ़ नहीं हो गया, वहाँ से जो मिट्टी वगैरह थी वो वहाँ से हट नहीं गई। बट शी डेयर नॉट टू टर्न हिम ओवर, लेकिन वो उसे पलटने से बहुत ज़्यादा डर रही थी, हिम्मत नहीं कर पा रही थी उसको टर्न करने की। डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ हना had told the servant that they only wanted to bring the man to his senses so that they could turn him over as a prisoner. और जो डॉक्टर सदाव और जो उनकी वाइफ हना थे, उन्होंने अपने सर्वेंट्स को बताया कि वो सिर्फ उसको यहाँ पर इसलिए लेके आए हैं ताकि वो उसे होश में ला सके, और फिर उसके बाद वो उसे पूछ सके और उसे वापस वहाँ पर वो सौंप सके। They knew that the best possible course under the circumstances was to put him back into the sea. और वो ये भी जानते थे कि सबसे अच्छा उनके लिए क्या रहेगा, जो कंडीशन वहाँ पे चल रही थी, जो सर्कमस्टेंसेस थी वहाँ पर, जिस तरह का वॉर चल रहा था, और जैसे वहाँ पर उनको अमेरिकन सोल्जर को रखना बहुत टिपिकल काम था, तो उनके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या था कि वो उसे वापस उसी समुद्र में फेंक दें। However, डॉक्टर सदाव वॉज अगेंस्ट हैंडलिंग ओवर अ वुंडेड मैन टू द पुलिस, और डॉक्टर सदाव जो थे वो इस बात के भी खिलाफ थे एज ए डॉक्टर कि एक जो ये जो वुंडेड पर्सन है, ऑल्दो ही वॉज अ एनिमी, बट फर्स्ट ही वॉज अ वुंडेड पर्सन। चाहे कुछ भी हो, पहले वो एक घायल व्यक्ति था, बाद में कोई प्रिजनर था, या फिर बाद में वो एक ब्रिटिश आर्मी का पर्सन था, तो वो इस बात के भी खिलाफ थे कि घायल व्यक्ति को पुलिस को सौंप दे। ही कैरिड हिम टू हिज हाउस, ही ऑपरेटेड अपॉन हिम एंड एक्सट्रैक्टेड द बुलेट फ्रॉम हिज बॉडी। वो इसीलिए उसको घर लेके गए और उन्होंने उसको जो है ऑपरेशन किया उसका, और उसकी बुलेट को जो गोली लगी थी उसकी बॉडी में, उसको बाहर निकाला। ही केप्ट द वाइट मैन इन हिज हाउस, और उन्होंने उस वाइट व्यक्ति को, उस यूएस नेवी के पर्सन को, उस जो वो प्रिजनर था उसको अपने घर में रखा। He and his wife looked after him and fed him till he was strong enough to walk in his legs. और उसकी वाइफ ने उनका तब तक ध्यान रखा तब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो गया और अपने पाँव पर चलने लायक नहीं हो गया। It was the 7th day since Dr. Sadav had operated
upon the young white man. Early that morning, the three servants left together in the afternoon. A messenger came there in official uniform. He told Dr. Sadao that he had to come to the palace at once as the old general was in pain again. Hana tried to cover his mistake by expressing regret and admitted that the general's illness was enough. Dr. Sadao told the general about the white man. Since Sadao was indispensable to the general, he promised that Dr. Sadao would not be arrested. और ये 7 डे था जब डॉक्टर सदाव ने उसका ऑपरेशन किया था यंग वाइट मैन का। और उस दिन जो है सुबह सुबह जो उनके तीनों सर्वेंट्स थे वो दोपहर में वहाँ से जॉब छोड़ करके चले गए थे। और वहाँ पर एक मैसेंजर आया ऑफिशियल यूनिफॉर्म जिसने पहना हुआ था और उसने डॉक्टर सदाव को बुलाया कि आपको इमिडिएटली जो है आपको रिपोर्ट करना है जनरल को, बिकॉज उन्हें जो है पेन दोबारा से स्टार्ट हो गया है। और हना ने अब किसी तरह अपने आप को कवर करने की, जैसे जब हम कोई गलती करते हैं तो हमारे फेस पे वो एक्सप्रेशन आ जाते हैं। तो हना भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि कहीं वो लोग अंदर आकर के चेकिंग ना करें, उन्हें कोई डाउट ना हो। तो इसीलिए उसने अपने एक्सप्रेशन को छिपाने की कोशिश की और जनरल की इलनेस के बारे में पूछा। डॉक्टर सदाव जो थे उन्होंने जनरल को वाइट मैन के बारे में बता भी दिया। और सिंस सदाव वॉज इंडिस्पेंसिबल टू द जनरल, क्योंकि जो सदाव थे बहुत विश्वसनीय भी थे जनरल के और बहुत जनरल उन पर विश्वास करते थे, तो उन्होंने उनको प्रॉमिस किया कि डॉक्टर सदाव को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। द जनरल प्रॉमिस टू सेंड हिज प्राइवेट असिस्टेंट्स टू किल द मैन साइलेंटली एंड सीक्रेटली एट नाइट एंड रिमूव हिज बॉडी। और जो जनरल थे उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि वो अपने प्राइवेट जो उनके जो लोग हैं वो अपने लोगों को भेज देंगे और वो उसको चुपचाप मतलब उनको मर्डर कर देंगे उनका चुपचाप साइलेंटली, और रात में आकर के बिना किसी को बताए वो उसका मर्डर कर देंगे और उसकी बॉडी को वहाँ से हटा देंगे। डॉक्टर सदाव लेफ्ट द आउटर पार्टीशन ऑफ वाइट मैन्स रूम ओपन। और डॉक्टर सदाव ने इसी चीज़ के लिए जो बाहर वाला पोर्शन था, पार्टीशन था, वो रूम का खुला रखा। ही वेटेड अनएग्जिस्टली फॉर 3 nights। और उन्होंने 3 रात तक बहुत पूरी तरह से वेट किया। चिंतित थे बहुत ज़्यादा वो। द सर्वेंट्स हैड लेफ्ट देयर हाउस। नौकर उनका घर छोड़कर जा चुके थे। हिज वाइफ हना हैड टू कुक। और उनकी वाइफ को अब कुक भी करना पड़ रहा था कि हाउस को क्लीन भी करना पड़ रहा था। और जो वुंडेड पर्सन था उसकी भी उन्हें बहुत सेवा करनी पड़ रही थी, उसका भी ध्यान रखना पड़ रहा था। शी वॉज अनअकस्टम्ड टू दिस लेबर। और बहुत थक चुकी थी इस लेबर से, बहुत थकावट फील हो रही थी उसको। शी वॉज एनेक्सियस दैट दे वुड गेट रिड ऑफ द मैन। और वो चिंता में थी उनकी वाइफ भी कि किसी तरह वो इस व्यक्ति से उन्हें कब छुटकारा मिलेगा। Dr. Sadao told Tom, the white man, that he was quite well then. He offered to put his boat on the shore that night. It would have food and extra clothing in it. Tom might be able to row to the little island which was not far from the coast. It had not been fortified. The water was quite deep. Nobody lived there as it was submerged in storm. Since it was not the season of storm, he could live there till he saw a Korean fishing boat pass by. He gave the man his flashlight. He had to signal twice with his flashlight at sunset in case his food ran out. In case he was still there and all right, he was to signal only once. डॉक्टर सदाव ने 3 दिन तक 4 दिन तक वेट किया, पर जनरल के जो आदमी थे वहाँ पर नहीं आए। और तब तक वो जो वाइट मैन था, टॉम जो था, वो काफ़ी हद तक सही हो चुका था। अब ही ऑफर टू पुट हिज बोट। और उन्होंने अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसे एक बोट प्रेफर की और समुद्री किनारे पर उस रात वो उनको छोड़ आए। और उस बोट में उन्होंने उसके खाने पीने का सामान और एक्स्ट्रा क्लोथिंग भी रखी उसके लिए। और उन्होंने उसको बताया कि जो आइलैंड है वो बहुत पास है, दूर नहीं है, तो वो अपने आप वहाँ तक
को नाव को चला करके जा सकता था. इट हैड नॉट बीन फोर्टिफाइड. और जो वाटर था वॉज क्वाइट डीप. नोबडी लिव्ड देयर. अब जो ये पानी वहाँ पर बहुत गहरा था और उस आइलैंड पर कोई रहता भी नहीं था, क्योंकि ये स्टॉर्म में एक तरह से पूरी तरह डूब चुका था. और सिंस इट वॉज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, और क्योंकि ये स्टॉर्म का सीज़न भी नहीं था, तो ये वहाँ पर आराम से रह सकता था. और तब तक रह सकता था जब तक उसको कोई कोरियन फिशिंग बोट जो है वहाँ तक नहीं गुजरती. और उसने उस व्यक्ति को जो अपनी फ्लैश लाइट भी दी, और उसने उसको ये भी बता दिया, पूरा इंस्ट्रक्शन भी दिए कि ही हैड टू सिग्नल ट्वाइस विद हिज फ्लैश लाइट एट सनसेट. कि जैसे सनसेट होने वाला होगा, रात में नहीं, सिर्फ सनसेट के समय ही वो उसको उस फ्लैश लाइट से 2 बार सिग्नल दे अगर उसका खाना ख़त्म हो जाता है. और इन केस ही वॉज स्टिल देयर एंड ऑल राइट. और अगर वो वहाँ पर होता है, रहता है, उस कोई कोरियन बोट वहाँ पर से नहीं गुजरती, और तो उसे सिर्फ वहाँ पर रहने का सिर्फ एक बार फ्लैश लाइट ऑन करके सिग्नल देना था. डॉक्टर सदाओ गिव द मैन जापनीज क्लोथ एंड कवर्ड हिज ब्लॉन्ड हेड विद ब्लैक क्लोथ. और डॉक्टर सदाओ ने क्या किया, उसको कुछ जापनीज क्लोथ दिए, और उसको जो उसका ब्लॉन्ड हेड था उसको ब्लैक कपड़े से कवर कर दिया ताकि उसको कोई पहचान ना सके. इन शॉर्ट, डॉक्टर सदाओ हेल्प द मैन टू एस्केप फ्रॉम जापान. एट द सेम टाइम ही ऑल्सो गेट रिड ऑफ द मैन. और इस तरह से उन्होंने उसकी हेल्प की, उसे जापान से निकालने में, और इस तरह से उन्हें उस आदमी से छुटकारा भी मिल गया. और जब जनरल ठीक हो गया तो सदाओ ने जनरल को ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो जो टॉम था वो किसी तरह वहाँ से बचकर निकल गया. और जैसा कि जनरल ने सदाओ को खुद ही प्रॉमिस किया था कि वो उसका असैसिनेट करा देगा, उसका मर्डर करा देगा, लेकिन वो अपनी बीमारी के कारण, अपने पेन के कारण वो उस अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया. तो इस तरह से सदाओ को भी अपना इनाम मिल गया था. एक तरह से उसको एक गिफ्ट मिल गया था, क्योंकि उसे आइलैंड से कोई भी इस तरह का कोई भी उसने सिग्नल नहीं मिला. इसका मतलब वो वहाँ से जा चुका था और वो सेफ वहाँ से अपने अमेरिका चला गया. और एक ये उसके लिए एक बहुत बड़ी ये चैन की बात थी सदाओ के लिए कि उसका भी उस व्यक्ति से पीछा छूट चुका था. लेकिन बार बार यही सोच रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ कि मैं उसको मार क्यों नहीं सका. मैं बहुत जैपनीज़ एक पैट्रियट हूँ, अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ और अपने देश का सम्मान करता हूँ, लेकिन उसे बार बार इसी बात का पछतावा था कि पता नहीं क्यों, किस कारण से वो उसको मार नहीं पाया. नाउ द चैप्टर इज़ ओवर. आई होप you understood the chapter. Thank you. Once again, please like and subscribe the channel. Thank you.